And today we are starting with golden rule of accounts. So please write down whatever you can see on the board. Personal account, I am reading it for you, right? So that you can write it very carefully and precisely. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. इतना लिखो और फिर रुक जाओ. Do you want me to repeat? I can repeat it for you, no problem. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Take your time, properly लिख लो, no hurry. Now you may be thinking कि सर ये क्या है, मतलब why you want us to write this down, right? आपको शायद ऐसे लग सकता है. These are 3 pillars of bookkeeping, accountancy. 3 pillars. ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि पूरा बुक कीपिंग इज ऑन दीज 3 पिलर्स. ये जितना अच्छा हमें याद रहेगा, जितना अच्छा हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इट इज बेटर फॉर अस, राइट? एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट. मैं रात को 2 बजे भी आपको उठा के पूछूंगा कि व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, यू शुड बी एबल टू स्पीक. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, right? So these are the 3 pillars of accounts we have to remember, right? धीरे धीरे हम आगे जाएंगे. हाँ अथर्व, ये पार्ट आप बाद में लिख लेना, नो प्रॉब्लम. बाकी बच्चों ने ये लिख लिया है, right? You can do one thing, you can take a screenshot and later on complete it writing on the page, right? एक screenshot ले लो, no problem, no problem. चलो डन है. Now, once we have written the rule, I am going one by one on each account, right? आज का हमारा टारगेट क्या है? आज के दिन में हमें सिर्फ और सिर्फ यही समझना है, यही सीखना है that what do we mean by these 3 accounts और उसके एग्जांपल्स क्या है. यही हमारा टारगेट है, right? चलो प्राची, इतना लिख लिया आपने? Yes sir. चलो ठीक है, राइट? सो एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स आई विल आस्क वेदर यू हैव रिटन और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली आई विल गो अहेड. I will presume rest of the students have written this, right? I will ask any one student randomly. Shivani done hai? You can thumbs up also. Yes sir. Okay, right? I am going on the first account, right? कोई घाई नहीं है, we will understand it very carefully because this is our foundation, okay? Personal account पे मैं जाता हूँ. What do we mean by personal account? As I told you that these 3 accounts are pillars of bookkeeping subject. उसमें से पहला account, personal account. Personal account represents any name of a person. Any name of a person will represent personal account. Example, निखिल पंचाल account, नाम है ना, personal account. ओके, सचिन तेंदुलकर अकाउंट, नाम है ना, पर्सनल अकाउंट. अमिताभ बच्चन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ये मैंने एग्जांपल दिए, नेचुरल पर्सन के एग्जांपल दिए. अब आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल थिंग जिसका नाम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल निखिल कॉमर्स क्लासेस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. जी हाँ, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, पर्सनल अकाउंट. क्यों? कंपनी का नाम है. बैंक ऑफ बड़ौदा, नाम सुना होगा आपने, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. क्यों? बैंक का नाम है. ये नाम आर्टिफिशियल पर्सन का है लेकिन नाम तो है, देन इट इज पर्सनल अकाउंट.
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एनी नेम ऑफ एनी पर्सन आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, it will be personal account, as simple as that. Are you understanding what I'm telling you? क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो पर्सनल अकाउंट का? कोई भी, नेचुरल या आर्टिफिशियल, कोई भी चलेगा. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनी पर्सनल अकाउंट? आई विल गो टू अथर्व. Any example, huh? And don't worry about correct answer, incorrect answer. Don't worry about it. Let it be incorrect. कोई बात नहीं. Incorrect बोलोगे तो मैं खुश होऊंगा. अथर्व. Yes, sir. Yeah. Personal account. Sir, Punjab National Bank. Yes, correct. बराबर है. तो बोलने का पंजाब नेशनल बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है. बराबर है. इसके पीछे का लॉजिक Yes. करेक्ट होना चाहिए. सी माई स्टडी वुड बी टोटली लॉजिक बेस्ड. आई वुड नॉट टीच यू एनीथिंग इलॉजिकल एंड मगिंग अप मैं नहीं करता हूं. मैं पूरा स्टडी लॉजिक के बेस पे पढ़ाता हूं. ठीक है. तो इसके पीछे का लॉजिक ये रहा कि पंजाब नेशनल बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि वो बैंक का नाम है. बैंक ह्यूमन बीइंग नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन नाम है, इसलिए पर्सनल अकाउंट. और कोई अथर्व? और कोई? एनीथिंग एल्स? नेचुरल पर्सन को कोई बता दो यार. नेचुरल पर्सन का सर. अरे यार कितना सारा है. तू फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल में मेसी का नाम ले ले. लायनल मेसी, isn't it? तो सर उसका पर्सनल, वो उसका भी पर्सनल अकाउंट हो सकता है सर. हाँ, कोई भी नेचुरल पर्सन. अथर्व कौशिक अकाउंट इज अ नेचुरल पर्सन. नाम है, नाम आया तो पर्सनल अकाउंट. समझा? चलो अभी शिवानी के पास में जाते हैं. शिवानी, कैन यू हियर मी? Yes, sir. एग्जाम्पल. Sir, a personal account. Virat Kohli. वेरी गुड. विराट कोहली अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. ओके. कोई आर्टिफिशियल में एग्जाम्पल दे दो. पता है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूछा था कि कौन से कंपनी का पब्लिक इश्यू आया है, शेयर्स का पब्लिक इश्यू? Zomato account. जोमेटो लिमिटेड इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो लिमिटेड कंपनी का नाम है. तो जोमेटो लिमिटेड इज अ पर्सनल अकाउंट. करेक्ट है. कोई भी देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अराउंड अस ओनली. हमारे आसपास में एग्जांपल्स पड़े हैं उसको पिकअप करने का. आप शायद जहां पे टेबल पे बैठे हो वो टेबल के आसपास में कुछ प्रोडक्ट होंगे, वो कोई कंपनी के प्रोडक्ट होंगे. फैन है तो फैन ओरिएंट कंपनी का फैन होगा शायद, क्रॉम्पटन कंपनी का फैन होगा शायद. पर्सनल अकाउंट, कंपनी का नाम है. आप शायद जहां पे बैठे होंगे टेबल पे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे शायद लिखा होगा सोनी वायो. तो सोनी लिमिटेड इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज नेम ऑफ अ कंपनी. सिंपल. सो एग्जाम्पल्स एंड स्टडी इज रिलेटेड टू अस ओनली. अपने आजू बाजू में सारा कनेक्टेड है, उसको पकड़ने का और सीखने का. राइट, डन है. गोइंग टू प्राची. प्राची बताओ. Sir, Narendra Modi account. वेरी गुड. पर्सनल अकाउंट बराबर है क्योंकि नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है. और आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आएगा? Sir, Tata company. या टाटा लिमिटेड, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा एंड सन्स कंपनी, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन के नाम है. करेक्ट. रिलायंस लिमिटेड का कितना सारा नाम है, टेस्ला का कितना सारा नाम है. आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी सारे आ रहे हैं. इधर आ रहा है टीवीएस iQube आ रहा है, हीरो का आ रहा है, कितने सारे आ रहे हैं. ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट हैं. तो इन शॉर्ट हमें याद ये रखना है कि सर जब कभी भी मुझे पूछेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या है, तो मैं सोचूंगा किसी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन का नेम आया, पर्सनल अकाउंट. डन. आर वी क्लियर एवरीबडी? यस और नो? थम्स अप. यप. तो इसके बारे में अभी हम डिटेल लिखने जा रहे हैं. चलो तो मैं ये
पर्सनल अकाउंट पे आ गया. आई थिंक यू कैन सी दिस ऑन द बोर्ड, राइट? प्लीज राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक. चलो शुरू करो, लिखना शुरू करो. राइट इट डाउन. लिखना है आपको. I'll read it for you. Any person name, whether natural or artificial. Take your time. Any person's name, person's name. Apostrophe s रखना. मेरा पेन कहाँ पे गया भाई? मैं भी इसमें एपोस्ट्रोफी एस रख देता हूं. Any person's name, whether natural or artificial, denotes personal account. It includes representative personal account. It includes representative personal account. For example, अब देखो मैंने 3 पार्ट में 3 स्टार किए हुए हैं मैंने. तो 3 स्टार इसलिए किए हैं कि पहले नेचुरल पर्सन का नाम लिखा है, दूसरा स्टार के बाजू में आर्टिफिशियल पर्सन का नाम लिखा हुआ है, तीसरे स्टार के सामने मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का नाम लिखा हुआ है, जो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा. आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन. जब टाइम आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा. प्लीज राइट डाउन. एग्जाम्पल, पहला स्टार नेचुरल पर्सन, मिस्टर धोनी अकाउंट, तेंदुलकर अकाउंट, अमिताभ अकाउंट, माधुरी अकाउंट. ये सारे नेचुरल पर्सन है, यू नो दैट. सेकेंड स्टार आप देख सकते हो, सेकेंड स्टार के सामने मैंने आर्टिफिशियल पर्सन के नाम लिखे हुए हैं. आप देखो ये सारे कंपनी के नाम है. देना बैंक अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्री अकाउंट, टाटा पावर लिमिटेड अकाउंट, कृष्णा टावर कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट. अपने आप लोग जहां पे रहते होंगे वो बिल्डिंग का कुछ सोसाइटी का नाम होगा ना, वो भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है. एंड थर्ड स्टार के सामने मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है. लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या है वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो सही वक्त आएगा तब मैं बात करूंगा. सो फॉर द टाइम बिंग आप लिख लो. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट. once you will get little hold of it, you know, you will be able to understand all the terminologies. आपको सब ये terminology पता चल जाएगा, उसके बाद में मैं ये बताऊंगा. डोंट वरी. चलो, so shall I consider that we are clear with this much? बच्चों, shall I consider we are clear with this much? Are you done writing this? आपने लिख लिया है? अगर लिख लिया है तो थम्स अप करो. ओके, वेरी गुड शिवानी. ओके, गॉट इट. अथर्व, प्राची, गॉट इट. हाँ, ये अच्छा सिस्टम है. आपके व्हाट्सएप के अंदर यू हैव रिएक्शंस लाइक थम्स अप रिएक्शंस, क्लैप रिएक्शन, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप वो रिएक्शन में थम्स अप करना. अगर ज्यादा अच्छा समझ में आया तो क्लैप का रिएक्शन करना. ठीक है? ओके, फाइन. चलो, सो फर्स्ट वाज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का मैंने रूल भी देखा. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हाँ, मैं रूल का एप्लीकेशन भी करवाऊंगा लेटर ऑन, लेकिन हो सके तो हमें याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड पर्सनल अकाउंट क्या होता है? एनी नेम, whether artificial person, natural person, representative person, any name, it denotes personal account. अब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. तो सर ये अकाउंट क्या है, ऐसा शायद आपको लग रहा होगा. बार बार मैं यूज कर रहा हूं ना, पर्सनल अकाउंट अकाउंट अकाउंट. तो बच्चों,
account represents refers to the summary of transaction done with a person. जैसे कैसे होता है कि एग्जाम्पल से बात करता हूं मैं, जैसे आपके वहां पे कोई ग्रोसरी स्टोर होगा, राइट, और ग्रोसरी स्टोर के अंकल जो है वो मुझे पहचानते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, ओके, और मेरे मॉम ने बोला कि बेटा एक काम कर, तू जाके एक ब्रेड लेके आ, तू जाके एक बटर का पैकेट लेके आ, समथिंग लाइक दैट, ओके। आप वहां पे जाते हैं और अंकल को बोलते हैं कि अंकल मॉम ने बोला है कि एक ब्रेड का पैकेट चाहिए। तो अंकल मुझे पहचानते हैं कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो अंकल क्या करेंगे, वो जो दुकान वाले भाई साहब है वो क्या करेंगे, एक बुक में लिख के रखेंगे, अच्छा ये सोसाइटी से ये फ्लैट नंबर वाले भाई साहब के वहां के बच्चा आया था और एक ब्रेड का पैकेट लेके गया। वो समरी लिखेगा, ही मे नॉट आस्क नाउ एंड देन द अमाउंट, वो समरी लिखेगा। महीने के एंड में आपके पेरेंट जो भी है, मॉम या डैड, वो शॉप में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि कितना हिसाब हुआ भाई हमको बता दो, वो हिसाब के हिसाब से हम पैसा पे कर देंगे। तो वो जो हिसाब रखा हुआ है ना, उसे हम बोलते हैं अकाउंट केप्ट, अकाउंट केप्ट। तो उसके ऊपर का जो नाम होगा उसको हम लिखेंगे कि अच्छा ये भाई साहब वाला अकाउंट, मिस्टर शर्मा जी का अकाउंट। That is why we call it as the word account. Account represents the heading of summary of transaction. तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट, तो शर्मा जी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट। तो ये पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा। पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स एनी नेम ऑफ अ पर्सन, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब मैं सेकेंड अकाउंट पे जा रहा हूं, राइट। सेकेंड अकाउंट इज रियल अकाउंट, REAL, रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच आई कैन सी, फील एंड टच, एनीथिंग, एनीथिंग। मेरा फोन है जिसको मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं। मैंने बोला है वर्ड एनीथिंग, थिंग, थिंग माने चीज, वस्तु। मतलब ऐसा मत बोलना सर ह्यूमन बीइंग, मेरे बाजू में मेरी मॉम बैठी है, वो रियल अकाउंट? नो, मॉम है, वो लिविंग पर्सन है, वो एनीथिंग नहीं है, बराबर है ना। इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एनीथिंग, जिसको मैं आई कैन सी, फील एंड टच। मेरा टेबल है, आई कैन सी, फील एंड टच, ओके। फैन है, आई कैन सी, फील एंड टच। मोटर कार है, बिल्डिंग है, ओके, कंप्यूटर है, ये सारे थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, विच आई कैन सी, फील एंड टच, रियल अकाउंट। Are you all understanding what I'm trying to tell you? Getting it? क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो एनीथिंग का, वन बाय वन? अब मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं। प्राची, एनीथिंग, 2 एग्जाम्पल, एनीथिंग रियल अकाउंट। सर मोबाइल। हाँ, पर वो तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया। पेन। वेरी गुड, यस, pen is a thing, pen is a thing, yeah, it is a real account, it is a thing, बराबर है। और नोटबुक। ओके, नोटबुक इज अ थिंग, रियल अकाउंट, चलेगा। चलो शिवानी का टर्न। सर फैन एंड लैपटॉप। दोनों एग्जाम्पल मैंने ले लिया। सम अदर एग्जाम्पल। आपके आसपास में देखो, आपके आसपास में सारे एग्जाम्पल भर भर के पड़े हुए हैं। यू जस्ट थिंक अबाउट दैट, यू हैव एवरी। कबर्ड एंड बेड। वेरी गुड, वेरी गुड। कबोर्ड इज अ थिंग, रियल अकाउंट। या बेड, रियल अकाउंट। चेयर, रियल अकाउंट, करेक्ट। रेफ्रिजरेटर, राइट। ओ सॉरी, मैं अथर्व तुम्हारा एग्जाम्पल शायद बोल रहा हूं मैं। हाँ चलो अथर्व, अभी आप सोचो, मैं एक दो बोल गया, सॉरी। सर बैग। बैग, यस, वेरी गुड, इट्स अ रियल अकाउंट, इट इज अ थिंग, रियल अकाउंट। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर रियल अकाउंट, लेकिन कैलकुलेटर तुम लोग को अलाउड नहीं है। 11th एंड 12th यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं और कुछ एग्जांपल ऐड कर देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी, रियल अकाउंट, ओके। मोटर व्हीकल, आई थिंक मैं बोल के गया, मोटर व्हीकल रियल अकाउंट। इसके अलावा देयर आर सम इनटेंजिबल एसेट्स, अगेन इनटू ब्रैकेट में बोल रहा हूं, इन्वर्टेड कोमा, intangible asset are also called as real account। अब ये intangible asset क्या है वो मैं थोड़े टाइम के बाद में आऊंगा। फॉर द टाइम बिंग
मैं रियल अकाउंट क्या है, तो एनीथिंग विच आई कैन सी फील एंड टच इज अ रियल अकाउंट, ऐसे मुझे समझना है. एनीथिंग विच आई कैन सी फील एंड टच इज रियल अकाउंट, राइट. लेट अस राइट डाउन समथिंग अबाउट इट. चलो, रियल अकाउंट, इसको लिखो. यू कैन सी ऑन द बोर्ड रियल अकाउंट. सारा चीज मुझे नोटबुक में व्यवस्थित लिखा हुआ चाहिए बच्चों. ये मैं चेक करूंगा जब हम क्लास पे मिलेंगे. ओके, सो बी सीरियस अबाउट इट. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई स्टडीज एंड आई वॉन्ट द सेम थिंग विथ माई स्टूडेंट्स. Please write the example also. Goods account, cash account, furniture account, building account, car account. जो पहला दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ना, वो बहुत बार यूज में आने वाला है. दैट इज गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. ये आपको बार बार यूज में आएगा. आप जब स्टडी करोगे, आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो इसलिए मैंने वो पहले लिखा हुआ है, गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, लाइक दैट. आई थिंक डन है. सो रियल अकाउंट का रूल मैं एक बार रिपीट करता हूं, बिकॉज देखो इसके पीछे भी लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है. बिकॉज रियल अकाउंट इज ऑल थिंग्स, राइट, नॉन लिविंग थिंग्स. तो थिंग्स कैन कम टू मी और इट कैन गो आउट. सो इसलिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट का रूल बहुत सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, क्योंकि वो इट वाज रेफरिंग टू द नेम ऑफ द पर्सन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एज सिंपल एज दैट, राइट. ये दो रूल में, दो अकाउंट में, एनी वन ऑफ यू हैज एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. क्या किसी को कोई डाउट है? इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी. थिंक अबाउट इट, नो हरी, थिंक अबाउट इट, कोई घाई नहीं. थिंक अबाउट इट. और भी कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई को रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, whatever it may be, don't worry, and you are free to think and free to ask any doubt, any question. Bindas. 25 seconds to respond. सोचो, कोई भी डाउट है? इससे ये भी मुझे पता चलेगा कि आपका थिंकिंग एबिलिटी कितना है, राइट. ये भी मुझे पता चलेगा. अलाउड है. एंड डोंट वरी, टेक्स्ट बुक भी मैं आगे जाके उसके साथ में कवर करूंगा. ये देखो, मैं टेक्स्ट बुक भी आपको दिखाता हूं, विच आई हैव केप्ट अलोंग विथ मी. ये आपको मैं शेयर कर रहा हूं टेक्स्ट बुक का पीडीएफ. टेक्स्ट बुक दिख रहा है आपको, राइट. ये सारे चैप्टर्स हैं अपने. इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, सिंगल एंट्री. तो बच्चों, कॉलेज में मैंने ऑब्जर्व किया है दैट कॉलेज में दे मे नॉट टेक ऑल द चैप्टर, लेकिन मैं यहाँ पे सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सारे चैप्टर्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं पे लगने वाला है. सो आई एम गोइंग टू टीच ऑल द चैप्टर्स. आपके कॉलेज में जब कभी भी आपका एडमिशन होगा,
आई एम नॉट अवेयर वेदर दे आर गोइंग टू टेक ऑल द चैप्टर्स और नॉट. कई कॉलेज में कुछ चैप्टर स्किप कर देते हैं, राइट? ये साल जो लास्ट ईयर गया उसमें तो कम से कम 4 चैप्टर वो लोग ने स्किप कर दिए थे. लेकिन आई हैव टॉट ऑल द चैप्टर्स टू माय स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन फर्दर स्टैंडर्ड्स, राइट? चलो, अगेन आई एम कमिंग बैक ऑन अवर नोट. ठीक है, मैं नोट पे आ गया. पहले 2 अकाउंट हमने पढ़ लिए. अब मैं थर्ड अकाउंट पे आ रहा हूं. ये शिवानी कहां पे गई भाई? वेयर इज शिवानी? शिवानी हैज गॉन आउट. मे बी कुछ इश्यू हो गया उसका. चलो ठीक है. एनीवे, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर स्पेशली फॉर दीज थिंग्स ओनली, so you will get a backup also, not to worry, right? I'm going on the third account, बच्चों, right? And the third account is nominal account. Nominal account. Now the word is saying as such nominal. Nominal का literal meaning होता है less expensive, less important. हम बोलते हैं ना ये nominal चीज है, छोड़ो ना, क्या बात करनी है. नॉमिनल का लिटरल मीनिंग ये होता है, लेकिन अकाउंट्स में, बुक कीपिंग सब्जेक्ट में नॉमिनल का अकाउंट होता है any account connected with either profit, income, expense or loss. Either expense, losses, incomes or profit. ये 4 चीज, ये होता है nominal account, इससे connected होता है. So all those accounts which represent income, expense, profit, loss are nominal account. ऐसे मुझे समझना है, बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल ले लेता हूं. सर नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या है? कई सारे खर्चे होते हैं जो हम करते हैं. खर्चा, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये नॉमिनल है. एग्जाम्पल, आई हैव पेड सैलरी टू माई स्टाफ. तो सैलरी अकाउंट इज एक्सपेंस फॉर मी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. समझा आप लोगों को? सो एनी अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स एक्सपेंस और इनकम और प्रॉफिट और लॉस is nominal account. मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सैलरी पेड टू माय स्टाफ. मेरे लिए खर्चा है, स्टाफ के लिए इनकम है, ये नॉमिनल अकाउंट है. सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. समझा? कैन यू थिंक अबाउट अदर नॉमिनल अकाउंट? सोच लो. आई एम गिविंग यू 20 seconds टू थिंक अबाउट इट. फिर मैं नाम बोलूंगा, आप मुझे आंसर दोगे. बच्चों और एक चीज, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑनलाइन कोचिंग में आपको कई सारे टाइम तक आपको स्क्रीन पे देखना पड़ता है. तो अगर आंखों के ऊपर स्ट्रेस आपको अवॉइड करना है तो उसके 2-3 तरीके हैं, राइट, विच आई यूज. बिकॉज नेचुरली जैसे आप लोग को स्क्रीन पे देखना पड़ता है, हमको भी तो स्क्रीन पे देखना पड़ता है. तो देयर आर 2-3 थिंग्स. नंबर 1, आईज को ब्लिंक करते रहना है. थोड़ी देर के बाद में आईज को ब्लिंक करना है, तो इससे ऑयलिंग होता है. नंबर 1. नंबर 2, थोड़ी देर के बाद में you avoid looking at the screen. You may look here or you may look here or there, something like that. तो आपके आंखों को थोड़ा स्ट्रेस कम फील होगा. एंड नंबर 3, हो सके तो आफ्टर मे बी हाफ एन आवर और 45 मिनट्स हो सके तो आंखों को हल्के हाथों से यू जस्ट डू मसाजिंग लाइक दिस. इट विल हेल्प यू लॉट, राइट? आप ऑब्जर्व करना. सी मुझे अब तक हाँ ठीक है, मैं शायद 9th-10th में था, आई हैड सम नंबर्स, बट उसके बाद में मुझे नंबर्स नहीं है, आज की तारीख में भी नहीं है, गॉड्स ग्रेस, राइट? आई डू सम लिटिल एक्सरसाइजेस लाइक दिस एंड आई कैन इम्प्रूव इट. यू कैन ऑल्सो डू इट. या चलो, कोई एग्जाम्पल मुझे दीजिए. गोइंग टू प्राची, एग्जाम्पल प्लीज. नॉमिनल अकाउंट. आप ऐसा सोचो प्राची कि आप कहीं पे बाहर जाते हो तो क्या खर्चा करते हो? सर इन द शॉप्स. नहीं, शॉप्स बोलो मत. खर्चा क्या होता है आपका? खर्चे के बारे में सोचो या इनकम के बारे में सोचो. सोच लो, कोई बात नहीं. अथर्व. सर फूड. फूड, ओके, यू विल से फूड परचेज्ड. ओके, रिफ्रेशमेंट अकाउंट, रिफ्रेशमेंट बोल सकते हैं. और
देखो मैं बोलूं, आप इमेजिन करो कितने सारे एग्जाम्पल है आपके आजू बाजू में पड़े हुए हैं, कितने सारे एग्जाम्पल है। इमेजिन करो कि आप, बारिश का मौसम है, आप अपने फैमिली के साथ में घूमने के लिए लोनावाला गए, तो सबसे पहला खर्चा आपका करना पड़ेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आप शायद अपनी कार से जाएंगे तो आपको पेट्रोल कॉस्ट होगा, आप कार हायर करके जाएंगे तो आपको हायर चार्जेस पे करना पड़ेगा, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चीज, आप जाओगे तो नेचुरली ठंडा मौसम है तो गरम गरम भुट्टा देता होगा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, है ना, कॉर्न। तो गरम भुट्टा खाएंगे आप, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट। थर्ड, आप वहां पे जाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसा टच करके वापस आ जाओगे, आप वहां पे शायद 1-2 दिन रुकोगे, तो आप होटल को बुक करोगे रहने के लिए, इजंट इट। तो लॉजिंग बोर्डिंग का आपका खर्चा होगा, ये भी खर्चा है। अच्छा, उसके बाद में शायद साइट सीइंग के लिए कहाँ पे जाओगे, तो कोई गाइड करोगे तो गाइड को आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो गाइड एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है, राइट। वैसे देखो, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन ये सारे खर्चे पर्सनल एक्सपेंस है बच्चों। एक बात समझ लो, हमें बुक कीपिंग में जो रिकॉर्ड करना है ना, वो बिजनेस कनेक्टेड करना है। तो बिजनेस कनेक्टेड खर्चे क्या क्या होते हैं, तो जैसे मैंने कहा आपको, नंबर 1 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरी टू स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट पेड, कन्वेयंस एक्सपेंसेस, ये सारे बिजनेस के खर्चे हैं। आपके पेरेंट का शायद बिजनेस होगा, तो उनसे बात कीजिए कि बिजनेस में खर्चे क्या होते हैं। दीज आर ऑल नॉमिनल अकाउंट। इनकम क्या होता है, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये प्रॉफिट या लॉस के एग्जांपल है, ये भी नॉमिनल अकाउंट। इन शॉर्ट, nominal account is connected with all expenses, incomes, profits and losses. All are nominal account. जो भी खर्चा आप सोच सकते हो वो नॉमिनल अकाउंट है। बिकॉज खर्चे के एग्जाम्पल ज्यादा है, इसलिए मैं बार बार वर्ड खर्चा बोल रहा हूं, एक्सपेंसेस बोल रहा हूं, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस विच वी इनकर, राइट। चलो, लेट अस राइट डाउन अबाउट नॉमिनल अकाउंट। ये देखिए, प्लीज राइट डाउन ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी इट। We were on the third account, that is nominal account, right? हम लोगों ने nominal account का part अभी पढ़ा। Third account, that was nominal account. Nominal account, just a minute, huh? Nominal account refers to all expenses, incomes, profits and losses, right? उसके example भी हमने देखे। Nominal account का rule है debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. ये मेरा नॉमिनल अकाउंट का रूल है। पहला अकाउंट हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट हमने पढ़ा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड अकाउंट हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। एवरीबडी, have you understood all the 3 accounts? Any doubt in 3 accounts, you can ask me. And I want you to remember rule and meaning of the account. मैं अगर आपको पूछूं कि इसका रूल क्या है और मीनिंग क्या है, तो you should be able to give me the answer. ये होना चाहिए। चलो सोचो आप, think about it. Any doubt you can ask me. Thereafter I will ask you and you have to answer me. Think about it. Any doubt? Personal account. जैसे ही नाम सुनते हो पर्सनल अकाउंट, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए नेम ऑफ अ पर्सन, वेदर नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल पर्सन, एनीथिंग विल डू, लेकिन नाम आया तो पर्सनल अकाउंट। फिर जैसे ही रियल अकाउंट का नाम आया तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए एनीथिंग, माने चीज, वस्तु, विच आई कैन सी, फील एंड टच, दैट इज रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, all expenses, incomes, profits and gains, nominal account। ऐसे हमें याद आना चाहिए। सोचो चलो, and I want you to tell me the rule।
आज के दिन आप देख के बोलोगे तो भी चलेगा, आपने नोटबुक में लिखा हुआ है, रूल्स भी लिखा हुआ है और मीनिंग भी लिखा हुआ है। आज के दिन के लिए आप अगर देख कर भी बोलोगे तो मुझे चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड आई एक्सपेक्ट दैट दिस यू शुड रिमेंबर, बाय हार्ट करना है आपको। टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 2 minutes, फिर मैं पूछूंगा, ठीक है? चलो लास्ट 40 seconds। सर या टेल मी। सर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट सर उन लोग के अंदर सेम ही क्यों है सर? सैलरी अकाउंट भी है, रेंट अकाउंट भी सेम ही है, सिमिलर है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में मैंने आगे वर्ड लगाया है आउटस्टैंडिंग, चेक करो, O/S है ना, मतलब वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, उसमें कुछ फर्क है। तो वो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, वो मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, राइट? तो फिलहाल मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एक्सप्लेन नहीं किया है, राइट? जिंदगी भर की 40 साल पबजी खेली, म्यूट, हाँ म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग, आर वी क्लियर? कैन वी गिव आंसर नाउ? पॉसिबल है? चलो प्राची से स्टार्ट करता हूं। हाँ प्राची, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, मैं किसी भी अकाउंट का नाम बोलूंगा, राइट? तो आप उसका मुझे मीनिंग बताएंगे शॉर्ट में, एग्जाम्पल बताएंगे, और आप उसका रूल क्या है वो बताएंगे। देख के भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आज के दिन के लिए यू कैन रीड एंड आंसर, चलेगा, बरोबर है? चलो ठीक है, प्राची से स्टार्ट करते हैं। प्राची, रियल अकाउंट। Okay, sir. देख के भी बोल सकते हो, इट्स ओके, अलाउड है, आज के दिन के Real लिए allowed है। account. Yes, sir. Real account means account which means we can touch or feel. For Right, example, the fan, the doors, our cupboard. correct, correct, So right, they are the real account. ओके ओके, करेक्ट है। उसका रूल क्या है? And rule is debit what comes in, Correct. credit what goes out. करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, राइट? पर आई एम श्योर आप जब बोल रहे हैं तो कन्विंस आपको खुद को हो रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। यू आर नॉट जस्ट रीडिंग एंड स्पीकिंग, करेक्ट प्राची? Yes, sir. ओके ओके फाइन। चलो अथर्व, अथर्व यू विल टेल मी पर्सनल अकाउंट। Yes sir. या पर्सनल अकाउंट। Sir, personal account, sir, it contains any artificial or original name of a person or a company. ओके Or, sir, there are two. बोल खाली बेवकूफ बना रखा है। Yes, sir, sir, personal account, sir, it contains either either a name of the company or a natural person. ओके ओके डन। उसका रूल क्या है? रूल क्या है? रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द Sir, गिवर। debit the receiver, credit the giver. ओके डन डन Debit the receiver, credit the giver. डन 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 ओके Credit the. राइट। सो यू कैन म्यूट इट, या अथर यू कैन म्यूट इट। सो ये 3 अकाउंट आज हम लोगों ने पढ़े हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। As I have told you, these are the 3 pillars of bookkeeping.
जब तक ये ठीक से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जब तक ये ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे पढ़ने में हमें मुश्किलें आएंगी। तो आज का दिन हमने 3 पिलर्स ऑफ अकाउंट पढ़ा है। आपके पेरेंट्स भी अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे और आप उनसे जब डिस्कशन करोगे, तब वो लोग भी आपसे, अगर आप यू विल टेल देम दैट व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे, they will also say that these are the 3 main pillars of accounts: bookkeeping, personal account, real account and nominal account। ये आज हमने मीनिंग पढ़ा है। ये मीनिंग आप एक बार घर पे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कनेक्ट करके स्टोरी आगे लेके जाऊंगा। आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं, वी विल लर्न लाइक अ स्टोरी फॉर्म, लाइक अ प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर्म, कि जो आपके आसपास में हो रहा है उसको हम कनेक्ट करेंगे। And with examples we will try to learn all the concepts, right? आज के दिन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, you can ask me now.